ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں بیان ہوتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد، یعنی کہ اسلام کے حقیقی عقائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ جب جیسے حالات جا رہے ہوں اس کے مطابق ہم حالات حاضرہ پہ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، انٹریکٹیو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ناظرین کو یہ سہولت میسر آتی ہے کہ وہ پروگرام کے دوران جس وقت چاہیں جب چاہیں فون کر کے ہمارے علماء کرام سے بات کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے موضوع سے متعلق یا جنرلی جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق کوئی بھی سوال جو ان کے ذہن میں ہو وہ بھی ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ تاہم اس ایک رابطے کے علاوہ جو ٹیلی فون کے ذریعے سے اسٹوڈیو میں پروگرام کے دوران ہمارے ناظرین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ای میل اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، اور ان پہ بیس کر کے ہم اپنی ابتدائی گفتگو پروگرام کی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ای میل کے ذریعے سے موصول ہونے والے سوالات کے پر مبنی گفتگو ہم پروگرام کے آغاز میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے جو آغاز کی گفتگو ہے اس کی طرف اور دیگر سوالات کی طرف چلیں، میں اپنے پینل میں تشریف فرما علماء کا آج تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پہ لنڈن اسٹوڈیوز میں ہیں مکرم محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالی مکرم محترم حافظ مظفر احمد صاحب اور مکرم محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کی تاریخ ہے، اور اس روز یعنی کہ 25 دسمبر کو مسیحی برادری جو ہے وہ اسے کرسمس کے نام سے مناتی ہے۔ ہم جانتے ہیں فیسٹیوٹی کے اعتبار سے ایک ظاہر ہے پوری کرسچن دنیا میں، مسیحی دنیا میں اسے ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ روز ہے جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ہم سب سے پہلے آج اپنے اس پروگرام میں جو ہمیں ای میلز کے ذریعے سے بھی بہت سے لوگوں نے جیسا ہم کرسمس کو اپروچ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا کالجز یونیورسٹیز میں اپنے دوستوں سے حلقہ احباب میں جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو سوال ہمیں بھیجا، اس پہ ہم اپنی گفتگو کا آج عطاء المجیب راشد صاحب آپ سے یہ سوال پوچھ کے آغاز کریں گے کہ کیا کرسمس یعنی کہ 25 دسمبر کیا یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جیسا آپ نے تعارف بھی کروایا، یہ سوال تو ٹاپک آف دی ڈے ہے۔ آج کرسمس کا دن ہے، یہی موضوع ہے، اس لیے بہت باموقع سوال ہے جو سامنے آیا ہے۔ اس سوال کے بارے میں جیسا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارے عیسائی دنیا میں، عیسائی ممالک میں ہو یا جہاں پر بھی عیسائی لوگ رہتے ہیں، مسیحی لوگ رہتے ہیں، ان سب کا بالعموم عقیدہ یہ ہے کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور اسی اعتبار سے کرسمس منایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کلیم بن جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس بارے میں کہ ولادت کا دن کون سا ہے، عیسائی مفکرین میں، عیسائی علماء میں ان کی آراء میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، بہت کثرت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر اس سلسلے میں رہنمائی لی جائے تو بائبل کو دیکھا جائے تو بائبل سے بھی ہمیں جو شواہد ملتے ہیں وہ اس کی تردید کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید میں جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ بھی واضح طور پر بتاتی ہے کہ 25 دسمبر یعنی سردیوں کا دن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہی تھا۔ اب اس بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو سب سے پہلے اگر عیسائی اسکالرز کے باہم اختلاف کا ذکر کیا جائے تو آپ کو اور ناظرین سامعین کو سن کر، ناظرین کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی
کہ 136 मुख्तलिफ आरा हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन क्या था, और पूरी बाइबल में किसी इंजील नवीस ने 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन के तौर पर जिक्र नहीं किया। और तीसरी सदी ईस्वी में जाकर विलादत का दिन जो मुकर्रर किया गया वो 6 जनवरी था, और फिर उसके बाद चौथी सदी ईस्वी में इसको बदल कर 25 दिसंबर में कर दिया गया। और उसकी वजह यह हुई कि 25 दिसंबर का दिन बिलमूम ईसाई लोगों में और उससे पहले ईसाइयत से के वजूद में आने से पहले ही एक बड़ा ही मुक़द्दस दिन समझा जाता था। कहते थे कि ये सूरज देवता की पैदाइश का दिन है और इसको एक अहम दिन के तौर पर पहले से मनाया जाता था। इसकी अज़मत और अहमियत लोगों के दिलों में रासिख़ थी। तो इस दिन की मकबूलियत की वजह से ईसाई मुफ़क्किरीन और ईसाई उलमा ने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन के तौर पर इसको इख्तियार किया, लेकिन जैसा मैं ज़िक्र कर चुका हूँ इसके कोई शवाहिद नहीं मिलते। जहाँ तक क्रिसमस की तारीख़ और उसके विलादत के दिन के बारे में ईसाई उलमा के इख्तलाफात की तफसील का ज़िक्र है, मैं सिर्फ 2 हवाले आपके सामने रखूँगा। इसमें देखें कि इंटरप्रेटर्स बाइबल एक बड़ी मशहूर ज़ख़ीम किताब है बाइबल की, जो 13 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसमें लिखा गया है कि अर्ली इन द 3rd century AD some parts of the churches celebrated January 6 as the birthday of Jesus. In the 4th century, that day was displaced by December 25, a day that had long been the occasion of a pagan festival associated with the rebirth of various solar deities. It was the date of the winter solstice according to the Julian calendar. इसका तर्जमा यह है, ये इंटरप्रेटर्स बाइबल का हवाला है, तर्जमा यह है कि 3री सदी ईस्वी के आगाज़ तक चर्च के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 6 जनवरी को यौम विलादत मसीह मनाया जाता था, और चौथी सदी में इस तारीख़ को 25 दिसंबर में तब्दील कर दिया गया, जो कि बहुत से बुत परस्त कौमों के ऐसे त्यौहार जो समावी देवताओं के दोबारा ज़हूर के मुतालिक थे उनका दिन समझा जाता था, और जूलियन कैलेंडर के मुताबिक यही तारीख़ थी। इसी तरह एक और बहुत मशहूर ईसाई रेवरेंड विलियम जेंक्स ने अपनी तफसीर बाइबल में 25 दिसंबर की तारीख़ को बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए रद्द करते हुए खुलासतन आखिर में लिखा है। उसने 136 मुख्तलिफ आरा का भी हवाला दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑन दिस वेरी ग्राउंड द नेटिविटी इन डिसम्बर शुड बी गिवन अप, कि मंदरजा बाला हक़ाइक़ की बिना पर ईसाइयों को दिसंबर में यौम विलादत मसीह मनाना तर्क कर देना चाहिए। ये जो मैंने हवाला पढ़ा है ये कम्प्रीहेंसिव कॉमेंट्री ऑन द बाइबल एडिटेड बाई रेवरेंड विलियम जेंक्स से लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आया बाइबल में इस बात का जिक्र है कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो जैसा मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, सारी बाइबल में किसी जगह ये जिक्र नहीं आता, और बाइबल में अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौसम के हवाले से अगर कोई इशारा या करीना मिलता है तो वो सिर्फ़ एक इंजील में मिलता है जो लूका की इंजील है, और उसका हवाला मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लूका की इंजील बाब 2 आयत 6 ta 8 में ये ज़िक्र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से हज़रत मरियम का ज़िक्र है। तो वो लिखते हैं कि जब वो यानी हज़रत मरियम वहाँ बैतुल्लहम में थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में इसके अलावा कोई जगह न थी। और फिर आखिर में वो लिखते हैं कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। अब अगर इस हवाले पर गौर किया जाए, जो बाइबल में एक ही हवाला है जिससे विलादत के मौसम की तरफ इशारा मिलता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो 25 दिसंबर का कोई ज़िक्र नहीं है, तो इससे इस्तेदलाल ये होता है, पहली तो ये कि इस बाब के शुरू में कैसर अगस्टस का ज़िक्र है कि उसके हुक्म के मुताबिक मरदमशुमारी का ज़िक्र मिलता है, और ये तारीख़ी लिहाज से गर्मियों में हुई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें ज़िक्र है कि नौमौलूद बच्चा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसके बाद उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको कपड़े में लपेट कर किस जगह रखा? अपनी उस जगह पर नहीं जहाँ उनका क़याम था, बल्कि उससे बाहर एक चरनी में जहाँ पर जानवरों के लिए चारा वारा रखा जाता था उसमें लपेट कर उनको रख दिया। अब कोई भी अगर साहिब दानिश इस पर गौर करे तो ये बात उसी वक्त हो सकती है। बाहर रखने की वजह तो ये थी कि जगह अंदर नहीं थी,
लेकिन बाहर रखने का जवाज़ उस वक्त पैदा होता है जब ये देख लिया जाए कि मौसम कैसा है। सख्त शदीद सर्दी का मौसम हो, जबकि कहते हैं कि बर्फ़ पड़ जाती थी, ऐसे मौसम में नौज़ायदा बच्चे को कपड़े में लपेट कर बाहर चरनी में रख देना बिल्कुल नाकाबिल तस्लीम है। तो ये गर्मियों का मौसम हो सकता है, सर्दियों का नहीं। फिर उसके बाद देखें कि दूसरी बात उन्होंने लिखी कि उस ज़माने में कुछ चरवाहे भी थे जो रात के वक्त बाहर ठहर कर अपने रेवड़ की निगरानी कर रहे थे। तो इंसानों का बाहर खुले आसमान के नीचे रहना ये भी उसी वक्त मुमकिन है जबकि सर्दी का मौसम ना हो बल्कि गर्मी का मौसम। फिर तीसरी बात यह कि वो जो जानवर, भेड़ बकरियां जिनका रेवड़ है, जिसकी वो निगरानी कर रहे थे, वो जानवर भी बाहरी थे। तो ये तीनों पहलुओं से देखा जाए तो ये ख्याल करना कि वो सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का मौसम है, इससे इस्तेलाल किया जाए तो ये बिल्कुल तीनों बातें उसके रद्द में जाती हैं। तो बाइबल की जो अंदरूनी शहादत है वो इस बात को वाज़े करती है कि ये ऐसे मुमकिन नहीं। और ये इस्तेलाल सिर्फ मैं नहीं करता या और साहिब फरासत नहीं करेंगे, बल्कि देखें कि लूका के इस बयान पर एक ईसाई स्कॉलर का तबसरा है, बिशप बार्न्स का तबसरा है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कमेंटिंग ऑन दिस वर्स ऑफ ल्यूक, बिशप बार्न्स इन हिज फेमस बुक द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन पेज 79 ही सेज, ये हवाले उनके अल्फाज हैं जो शुरू होते हैं, देयर इज़ मोर ओवर नो अथॉरिटी फॉर द बिलीफ दैट December 25 was the actual birthday of Jesus. If we can give any credence to the birth of Jesus, to the birth story of Luke, with the shepherds keeping watch by night in the fields near Bethlehem, the birth of Jesus did not take place in winter when the night temperature is so low in the hill country of Judea that snow is not uncommon. तो देखें कितनी वजाहत के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर लूका के इस बयान को ले लिया जाए कि ये दुरुस्त बयान है तो हरगिज़ ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इतनी शदीद सर्दी के मौसम में, जबकि बर्फ़बारी का भी इम्कान होता है जूदिया के इलाके में, तो या है कि बच्चे को बाहर रखा जाए या चरवाहे बाहर रहते हों या उनके रेवड़ बाहर रहते हों। ये तीनों बातें इस तस्वर को बिल्कुल रद्द करती हैं। और ये वो बात है जिस पर अगर इंसाइक्लोपीडिया को देखा जाए तो ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया और चैम्बर्स इंसाइक्लोपीडिया ने इस बात के, इस मौक़िफ़ की उन्होंने तस्दीक की है कि वाकई ये इस्तेलाल नहीं हो सकता। अगर ये रवायत दुरुस्त है तो 25 दिसंबर का नतीजा गलत है, अगर 25 दिसंबर की बात को माना जाता है तो फिर ये बयान गलत साबित होता है। और लूका के बयान वाज़े तौर पर बयान करता है कि ये गर्मियों का मौसम था, इसमें तयीन तो दिन की नहीं की गई लेकिन इशारा गर्मियों के मौसम का मिलता है। अब इसके बाद अगर हम कुरान मजीद की तरफ जाएँ जो कौल फैसल है, अल्लाह का लफ्ज़ी इल्हाम है, कती यकीनी कलाम है, उसमें दो खूबसूरत करीने हमें नज़र आते हैं जिससे न सिर्फ मौसम गर्मा की तरफ इशारा होता है बल्कि मुअय्यन तौर पर महीनों तक का इशारा उसमें नज़र आता है। वो आयात करीमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सूरह मरियम की आयात 24 ता 26 में ये मज़मून बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ाजाहल मखाज़ो इला जिज़्ल नखलते कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिया मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जाला रब्बुके तहतके सरिया व हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्न नखलते तुसाकित अलैके रुतबन जनिया। ये 3 आयात हैं। इनका तर्जुमा इस तरह पर है कि फिर दर्द ज़े उसे यानी हज़रत मरियम को खजूर के तने की तरफ ले गया। उसने कहा है काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बसरी हो चुकी होती। तब एक पुकारने वाले ने उसे उसकी ज़ेरी तरफ से पुकारा कि कोई गम न कर, तेरे रब ने तेरे नशेब में एक चश्मा जारी कर दिया है। और फिर तीसरी आयत यह है, और खजूर की तने को तू अपनी सिमत जुम्बश दे, वो तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। तो ये 3 आयात हैं जिनमें जो ख़ास चीज़ें नज़र आती हैं और जिनसे साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गर्मियों के मौसम में हुई। एक तो ये है कि उसमें खजूरों के पकने का जिक्र मिलता है। अब खजूरों के पकने का मौसम हर इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। जूदिया में जहाँ ये वाक़या हुआ वहाँ के बारे में हमारा ख्याल भी नहीं बल्कि ईसाई मुफक्किरीन का और बाइबल की तशरीहात और तफासिर लिखने वाले मुफक्किरीन का ये यकीनी बयान है कि ये महीना जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक का मौसम होता है। इस सिलसिले में मैं अगर आपको एक हवाला दूँ तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी वजाहत क्या है। मसलन देखें कि डॉक्टर जॉन डी डेविस अपनी डिक्शनरी ऑफ द बाइबल में लिखते हैं
कि डेट्स बिकम राइप इन द जूश मंथ ऑफ एलूल। और पीक की कमेंट्री में जो है कमेंट्री ऑन द बाइबल उसके सफ़ा 117 पर लिखा है द मंथ ऑफ एलूल कॉरस्पॉन्ड्स टू द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। गोया ईसाई उलमा भी इस नतीजे को तस्लीम करते हैं कि ये जुलाई या अगस्त का, जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक का वक्त है जिसमें कसरत के साथ खजूरें पकती थीं और शाखों पर मौजूद होती थीं। अगर दरख्त को हिलाया जाए तो वो नीचे गिर पड़ती थीं, जैसा कुरान मजीद में उसमें ज़िक्र किया गया है। तो मुअय्यन तौर पर महीनों की निशानदेही कर दी गई। और दूसरी बात इसमें यह बयान की गई है कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने जहाँ हज़रत मरियम ने बच्चे को की वलादत हुई और उसको रखा, उसके नीचे एक पानी का चश्मा जारी कर दिया था। अब पानी के चश्मे गर्मियों के मौसम में चलते हैं, सर्दियों में अगर शदीद मौसम जब आ जाए तो वो जम जाते हैं, चलते नहीं। और फिर एक ऐसा सख्त सर्दी के मौसम में अगर ठंडा पानी हो तो ना वो पीने के काम आ सकता है, ना बच्चे को नहलाने के काम आ सकता है, ना अपने जिस्म की सफाई के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ना तिब्बी लिहाज से उसके इस्तेमाल की कभी इजाज़त दी जाती है। तो इस पहलुओं से भी देखा जाए तो ये वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन है कि ये गर्मियों का मौसम था। और खजूर का जो करीना और उसके पकने का जिक्र है कि रुतबन जनिया, कि पकी हुई खजूरें गिरेंगी, तो पकी हुई खजूरों का मौसम अगर देखना हो तो वो जूदिया के इलाके में जुलाई से लेकर सितंबर तक का, जुलाई अगस्त का महीना बनता है। ये ख़ास तौर पर है जिसका वहाँ पर जिक्र किया गया। बस इस इतलात से और कुरान मजीद के इस मुहकम फ़ैसले से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये समझना कि ये 25 दिसंबर को वलादत हुई, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि जुलाई और अगस्त में के महीने में है। आखिर में मैं एक मुख्तसर सा वाला हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेश करता हूँ। आपने अपनी तफसीर कबीर में सारी इस बहस का ख़ुलासा इन अल्फाज में निकाला है। आप फरमाते हैं कि कुरान बताता है कि मसीह उस मौसम में पैदा हुए जिसमें खजूर फल देती है, और खजूर के ज़्यादा फल देने का ज़माना दिसंबर नहीं होता बल्कि जुलाई अगस्त होता है। और फिर जब हम ये देखें कि खुदा ताला ने उन्हें एक चश्मे का भी पता बताया जहाँ वो अपने बच्चे को नहला सकती थीं और अपनी भी सफाई कर सकती थीं, तो इससे भी मालूम होता है कि वो जुलाई अगस्त का महीना था। वरना सख्त सर्दी के मौसम में चश्मे के पानी से नहाना और बच्चे को भी गुस्ल देना, खुसूसन एक पहाड़ पर और अरब के शिमाल में, ये सब बातें अक़ल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो देखें किस तरह वजाहत से ईसाई उलमा के हवाले, बाइबल का हवाला और सबसे बढ़कर कुरान मजीद का फ़ैसला, नातिक फ़ैसला, ये वाज़ेह करता है कि 25 दिसंबर का विलादत के सिलसिले में तसव्वुर दुरुस्त नहीं, बल्कि ये विलादत जुलाई और अगस्त के गर्मियों के महीने में हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना अता मुजीब राशिद साहब।